Good morning, students. The today's next part is anomalous behavior of electronic configuration of copper and chromium. Yesterday and day after yesterday, we have already seen the electronic configuration of elements from atomic number 1 to 30 and the orbital diagram, that is block diagram of electronic configuration of elements from atomic number 1 to 30. Okay. Now the today's part is explain the anomalous behavior of electronic configuration of copper and chromium. These two electronic configurations are very important because of copper and chromium shows different electronic configuration than its normal electronic configuration because of, first of all, copper has atomic number 29. The atomic number of copper is 29 and its electronic configuration is electronic configuration of copper having atomic number 29, copper containing 29 electrons. So this distribution of 29 electrons in different orbitals like SPDF orbitals. So 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9. This is the normal electronic configuration of copper. Once again, what is the electronic configuration of copper? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9. The 3d orbital is neither half filled nor completely filled. 3d orbital जो है वो half filled भी नहीं है और completely filled भी नहीं है. Okay. The 3d orbital is neither half filled nor completely filled. Hence, it has less stability. d orbital is more stable when it is completely filled or half filled. d orbital मैंने कल बताया, d orbital stable कब होता है? जब वो completely filled होता है, मीन्स उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और हाफ फील्ड होता है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तब वो स्टेबल होता है. सो द 3d ऑर्बिटल इज नाइदर हाफ फील्ड नॉर कंप्लीटली फील्ड, हेंस इट हैज़ लेस स्टेबिलिटी ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन फोर्सेस. ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन फोर्सेस 1 4s इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू 3d ऑर्बिटल. क्या होता है? 4s और 3d ऑर्बिटल में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन फोर्सेस होता है. उसकी वजह से कौन से दो सबशेल में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है? 3d और 4s सबशेल में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है. इसकी वजह से 4s में से एक इलेक्ट्रॉन 3d में प्रमोट हो जाता है, एंटर करता है. 1 4s इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू 3d ऑर्बिटल. दिस मेक्स 3d ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड. 3d में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 9. 4s में से एक इलेक्ट्रॉन 3d में चले जाने के बाद 3d ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है और 4s ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो जाता है. सो 1 4s इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू 3d ऑर्बिटल. दिस मेक्स 3d ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड एंड 4s ऑर्बिटल हाफ फिल्ड. ओके, which gives extra stability and the electronic configuration of copper becomes 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10. This is the abnormal electronic configuration of copper. Similarly, in case of chromium, the atomic number of chromium is 24. It is indicated by Cr. Chromium, Cr has atomic number 24, means it containing 24 electrons. Its expected electronic configuration, expected means that is normal electron, expected electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4. 4s2, 3d4. 4s2, 3d4 is the outer valence electronic configuration. So therefore, the 3d orbital is less stable and it is not half filled. 3d orbital less stable है क्योंकि वो half filled भी नहीं है और completely filled भी नहीं है. Okay. So the 3d orbital is less stable and it is not half filled. Due to inter-electronic repulsion forces, 1 4s electron enters into 3d orbital, and because of entering one of the 4s electron into 3d orbital, the 3d orbital becomes more stable. 3d orbital becomes half filled. This makes 4s and 3d orbital half filled. 4s orbital भी half filled हो गया और 3d orbital भी half filled हो गया, which gives the extra stability, and the electronic configuration of chromium becomes 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5. Okay, so this is the electronic configuration of chromium and copper. Now next question is define and explain isoelectronic species.
What is isoelectronic species? Define and explain isoelectronic species. Atom and ions having the same number of electrons are called isoelectronic species. Atoms or ions having the same number of electrons, these species are called isoelectronic species. Once again, atoms and ions having the same number of electrons are called isoelectronic species. For example, consider potassium having atomic number 19. K means potassium. Consider potassium K, Z is equal to 19. Z means atomic number, which has 19 electrons, which containing 19 electrons. K plus is formed by the removal of one electron. Cations are formed by the removal of electrons and anions are formed by the gain of electrons. Cations means positively charged ions and anions means negatively charged ions. तो cations कैसे बनते हैं? इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद cations बनते हैं और इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद एब्जॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद anions बनते हैं. Cations means Na+, then K+, Ca+2, Ag+, these are known as cations, and anions means Cl-, Br-, O-2, S-2, नेगेटिवली चार्ज आयंस आर नोन एज एनायंस. सो कैटायंस कैसे बनते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने के बाद, इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद कैटायन बनते हैं और इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद एनायन बनते हैं. सो के पोटेशियम प्रोड्यूसेस पोटेशियम कैटायन by the removal of one electron. So therefore K plus has 18 electrons. एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया है. पोटेशियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 19. सो 19 में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे? 18. सो वन पॉजिटिव चार्ज बन गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया. दो पॉजिटिव चार्ज कब बनते हैं? दो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद. तीन पॉजिटिव चार्ज कब बनते हैं? तीन इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद. सो Na+ के ऊपर वन पॉजिटिव चार्ज होता है बिकॉज ऑफ इट लॉसेस वन इलेक्ट्रॉन. Ca+2 कैल्शियम+2 आयन. Ca+2 ions are formed by the removal of two electrons. Aluminium+3, एल्यूमिनियम के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज होते हैं क्योंकि एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है. जितने इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं उतने पॉजिटिव चार्ज बनते हैं. ओके, सो देयरफॉर सॉरी एक्सप्लेन कर रहा था. सो देयरफॉर जितने इलेक्ट्रॉन्स लॉस होते हैं उतने पॉजिटिव चार्ज बनते हैं और जितने इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं उतने नेगेटिव चार्ज बनते हैं. सो देयरफॉर पोटेशियम लॉसेस वन इलेक्ट्रॉन, सो दैट्स व्हाई इट प्रोड्यूसेस K, one positive charge. So therefore K plus is formed by the removal of one electron. So therefore K plus has 18 electron. 19 में से एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, रिमूव हो गया, इसलिए K plus में 18 इलेक्ट्रॉन रह गए. ओके, सो नेक्स्ट K plus, यहाँ पर दिखाया रिएक्शन देखो. K नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, K में कितने इलेक्ट्रॉन है? 19. K प्लस एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे? 18. सो देयरफॉर स्पेसीज सच एज ऑर्गॉन Ca+2 कंटेनिंग 18 इलेक्ट्रॉन्स. ऑर्गॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? 18. कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, लेकिन कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद Ca+2 बन जाएगा. बराबर है? देखो ना, ऑर्गॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? 18. पोटेशियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, K+ बन गया, तो पोटेशियम K+ में कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 18. ऑर्गॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एटॉमिक नंबर ऑफ ऑर्गॉन इज 18. सो ऑर्गॉन कंटेनिंग 18 इलेक्ट्रॉन. बट calcium having atomic number 20, but due to the removal of 2 electron it produces Ca+2. so Ca+2 containing how many electrons? 20 में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 18 इलेक्ट्रॉन. so therefore species such as Ar, Ca+2 containing 18 electrons are isoelectronic with K+. the electronic configuration of all these species is इन सभी किसकी? K+ की, ऑर्गॉन की और Ca+2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? तीनों की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. ओके, सो दीज आर नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट है. फॉर एन एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर. फॉर एन एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर. फॉर मोनोएटॉमिक कैटायन में देखो ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है. फॉर मोनोएटॉमिक कैटायन, मोनोएटॉमिक मीन्स एक ही एटम का कैटायन जिसमें एक ही एटम होगा और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया. फॉर मोनोएटॉमिक कैटायन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू Z मीन्स एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज ऑन कैटायन. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं? देखो, एटम के लिए, कैटायन के लिए और एनायन के लिए. So for atom, neutral number of electrons is equal to atomic number, that is Z. And for monoatomic cation,
कैटायन में इलेक्ट्रॉन कैसे डिटरमाइन करते हैं? इन कैटायन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी कैलकुलेटेड एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू Z, दैट इज एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज ऑन कैटायन। जितने चार्ज है वो Z में से माइनस करने हैं। और मोनो एटॉमिक एनायन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे फाइंड करते हैं? फॉर मोनो एटॉमिक एनायन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू Z, दैट इज एटॉमिक नंबर प्लस चार्ज ऑन एनायन। जितने नेगेटिव चार्ज होंगे वो ऐड करना है और जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे वो माइनस करना है। ओके, सो दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ monoatomic cations and monoatomic anions. Okay, now next question is find out one di-negative anion. Di-negative means which having two negative charge. Find out one di-negative anion and one unipositive means the cation having only one positive charge and the anion having two negative charge, that is known as di-negative anion. Find out one di-negative anion and one unipositive cation which are isoelectronic with neon atom. Write their electronic configuration using orbital notation and orbital diagram method. Find out, once again the question is find out one di-negative anion and one unipositive cation which are isoelectronic with neon atom. It is a neutral atom, neon atom. Write their electronic configuration using orbital notation and orbital diagram method. Okay, now first of all, neon having atomic number 10. Neon containing 10 electron. So therefore neon Ne and its isoelectronic species contains 10 electrons each. So neon के आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 10 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ऑफ नियॉन कंटेनिंग 10 इलेक्ट्रॉन। तो उसके जो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस है कौन है? वन डाइनेगेटिव एनायन। वन डाइनेगेटिव एनायन मीन्स नेगेटिव चार्ज, दो नेगेटिव चार्ज जिस पे होंगे वो एनायन और एक पॉजिटिव चार्ज जिस पे होगा वो कैटायन। इनकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होनी चाहिए, मीन्स उसमें इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। ओके, so therefore neon Z is equal to 10, therefore neon and its isoelectronic species contains 10 electrons each. Okay, so therefore the di-negative anionic species isoelectronic with neon is obtained by adding 2 electrons. एनायंस कब बनते हैं? इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद। और कैटायंस कब बनते हैं? इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद। तो डाई नेगेटिव एनायन कब बनेगा? दो नेगेटिव चार्ज कब बनेंगे? दो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद। और यूनिपॉजिटिव कैटायन कब बनेगा? एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद। सो देयरफॉर द डाई नेगेटिव एनायनिक स्पेसिस आइसोइलेक्ट्रॉनिक विथ नियॉन इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स टू द एटम विथ Z इज इक्वल टू 8। सो Z इज इक्वल टू 8 किसका एटॉमिक नंबर 8 है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8। ओके, मीन्स ऑक्सीजन कंटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 8 + 2 दैट इज 10। सो 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में ऐड करने के बाद ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। सो ड्यू टू द गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस O-2 आयन, दैट इज anion, O-2 anion. ओके, सो देयरफॉर neon is obtained by, the di-negative anionic species isoelectronic with neon is obtained by adding 2 electrons to the atom with Z is equal to 10. This is O-2. And the unipositive cation species, the unipositive cationic species isoelectronic with neon is obtained by removing 1 electron from an atom of एटॉमिक नंबर 11। जिसका एटॉमिक नंबर 11 होगा तो एटॉमिक नंबर 11 किसका है? सोडियम का। सो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद यूनिपॉजिटिव कैटायन बनेगा। ओके, 11 में से एक इलेक्ट्रॉन चले गए, रह गए 10 इलेक्ट्रॉन। सो ऑक्सीजन -2 एंड Na+ आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक विथ नियॉन। O-2 and Na+ are isoelectronic with neon because of these species containing 10 numbers of electrons. Okay, so therefore यहाँ पर दिया है, देखो टेबल क्या दिया है। पहला दिया है नियॉन, दूसरा दिया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं? ऊपर दिए 3 पॉइंट, फॉर एटम, फॉर कैटायन एंड फॉर एनायन। एनायन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे करते हैं? +Z+ चार्ज ऑन एनायन। ओके, सो ऑक्सीजन +2 इलेक्ट्रॉन्स
gives O-2. Okay, oxygen +2 electron gives O-2 and sodium -1 electron. कैटायन में इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिटरमाइन करते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन जितने पॉजिटिव चार्ज है वो माइनस करना है. ओके, सो देयरफॉर सोडियम Na-1 इलेक्ट्रॉन गिव्स Na+. ओके, सो देयरफॉर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नियॉन में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10, O-2 में 10 और Na+ में 10. ओके, सो देयरफॉर ऑर्बिटल नोटेशन क्या आएगा इनका, ऑर्बिटल नोटेशन मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, 10 है इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 2p6. इन तीनों स्पेसिस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, 1s2 2s2 2p6. एंड ऑर्बिटल डायग्राम, ऑर्बिटल डायग्राम 1s का एक क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन एक एंटी क्लॉकवाइज, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन. यहाँ पर है देखो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन. ऑर्बिटल नोटेशन क्या आएगा 1s2 2s2 2p6. और ऑर्बिटल डायग्राम 1s में 2 इलेक्ट्रॉन एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, और 2p में 6 इलेक्ट्रॉन्स, 3 क्लॉकवाइज px py pz में और 3 एंटी क्लॉकवाइज px py pz में. ओके, सो दिस इज द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस. ओके, एंड दिस इज द एंड ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम. ओके, स्ट्रक्चर ऑफ एटम 4 लेसन हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं. ओके, तो ये पढ़ो, बाय हार्ट करो. आज जो पॉइंट पढ़ा है मैंने, आइसो एनामलस बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर एंड क्रोमियम वो पढ़ो. ओके, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस ये भी पढ़ो और बाय हार्ट करो. बाय हार्ट करने के बाद ये नोट्स लिखो और नोट्स मुझे सेंड करेंगे तो भी चलेगा. नेक्स्ट लेसन इज नेक्स्ट लेसन टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द न्यू लेसन, दैट इज़ जस्ट बेटा मैं दूसरा वीडियो बना के आपको भेजता हूँ.